السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome my dear sisters. ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ Over to Zarina for Darud Ibrahim. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ زرینہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر 93 آنورڈز۔ انشاءاللہ آپ سب قرآن کھول لیجئے، تلاوت ہوگی آیت 93 سے۔ Over to Zarina. سب مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Is there some disturbance, Zarina? No, Baji, there was disturbance there only, that voice clipping. Okay. And my video is also on. Okay. ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत 93. वह और इज जब अखजना लिया हमने किसने? अल्लाह ताला ने. मीसाककुम, मीसाक पक्का वादा, कुम तुमसे, बनी इसराइल से. वरफ़अना, वो और, रफ़अना बुलंद किया, उठाया हमने, अल्लाह ताला ने. फ़ौक़कुमुत्तूर, फ़ौक़ कहते ऊपर, कुम तुम्हारे ऊपर, उठा लिया. अत्तूर, तूर पहाड़ को. खुज़ू, तुम सब पकड़ो. अल्लाह ताला ने क्या किया? तूर पहाड़ को उनके सरों पे उठा लिया. फिर फरमाया खुज़ू, तुम सब पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो अता किया हमने तुमको. क्या अता किया था? तौरात. लिख लीजिए उसके नीचे. आतैनाकुम को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखेंगे तौरात. बिकुव्वतिन, कैसे पकड़ो? कुव्वत के साथ, ताकत के साथ. और क्या करो? वस्माउ, वो और तुम सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो. कौलू, अब कौन जवाब दे रहा है? बनी इसराइल. बनी इसराइल ने कहा. समिअना, सुना हमने. व असवैना, और नाफरमानी की हमने सुन लिया और हम नहीं मानेंगे. अल्लाहु अकबर. ऐसा क्यों किया उन्होंने? अल्लाह ताला से क्यों कहा कि हमने सुन लिया पर हम मानने वाले नहीं? इसका रीजन अल्लाह ताला बता रहे हैं. वह उशरिबू, और पिलाए गए. उशरिबू, पिलाए गए. शराब वर्ड है इसमें, जिसे पिया जाता है. फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में क्या पिलाया गया था? अल इजला, इजले की मोहब्बत, बछड़े की मोहब्बत. बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह. दिस वाज द रीजन बिहाइंड देयर कुफ्र. कुल, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए इन लोगों से. बिसमा, कितना बुरा है. या अमुरुकुम, जो हुक्म देता है तुमको. बिही, साथ उसके. ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान. इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो. इंग्लिश में करते हैं. व इज अखजना मीसाककुम, and when Allah subhanahu wa ta'ala took a covenant, a promise from Bani Israel. Wa rafa'ana, and Allah ta'ala raised fawqakum at-tur, upon you the Mount Sinai. Khuzu, Allah ta'ala said, hold, ma atainakum, hold whatever is being revealed to you, that is Taurat, biquwwatin, with complete strength. Wasma'u, and listen carefully. Qalu, they said, Sami'na wa aswayna, we listened but we disbelieve. We listen but we won't obey. We disobeyed. Wa ushribu, and they were made to drink. Fi qulubihim,
in their hearts al-ijla, the love of the calf, the evil, bikufrihim, because of their disbelief. Qul, say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'sama, how evil is that, ya amurukum bihi, that orders you to do it, imanukum, your iman, your belief, in kuntum mu'minin, if you are believers. 93. इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो ए बनी इसराइल, जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया था. When we raised पूरा कोहे तूर, इतना बड़ा पहाड़, माउंटेन, the Mount Sinai, उसको अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया था. क्यों ऊपर उठा लिया था अल्लाह ताला ने पहाड़ को? अल्लाह के लिए इजी है या डिफिकल्ट? easy. वेरी इजी. बट अल्लाह ने क्यों ऊपर उठाया था पहाड़? टू शो अ मिरेकल. उनको अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते थे कि हाउ पावरफुल अल्लाह इज. और इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर अल्लाह ताला खुद आकर हमें किताब देंगे ना तो हम मानेंगे. अगर हम अल्लाह ताला को खुद देख लेंगे तो ही हम मानेंगे. तो अल्लाह ताला हर एक के सामने ऐसे नहीं आते ना, और हम इंसानों की ये कैपेसिटी नहीं है. इट इज आउट ऑफ आवर कैपेसिटी कि हम अल्लाह ताला को देख सके हमारी आंखों से. नहीं, हमारी आंखें इतनी पावरफुल नहीं है कि हम अपने सुपर पावर अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख सके. तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक मौजज़ा दिखा दिया, पूरे पहाड़ को ऊपर उठा लिया. क्या ये कोई कर सकता है? Nobody can do it. तो ये देख कर उनका ईमान, उनका यकीन बढ़ना चाहिए था. फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अब जो है ये तौरात मैं नाजिल करता हूँ, इसे तुम मजबूती से पकड़ो, वरना ये पूरा पहाड़ मैं तुम्हारे सरों पे गिरा दूंगा. तो डर गए. ऐसा डरे कि सारे के सारे सजदे में चले गए और बोले हाँ हाँ हम मानते. फिर जब अल्लाह ताला ने पहाड़ रख दिए और उसके बाद ये लोग जब वापस मूसा अलैहिस्सलाम से बात करने लगे, तो फिर इन लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो बहुत ज्यादा गुस्ताखी करते थे ना. तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमने सुना जो अल्लाह ने फरमाया और तौरात मिली, हमने सुन लिया, पर हम मानने वाले नहीं. इतने ढीठ हो गए थे, so arrogant and they were so disobedient. ये खुल्ला मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि हमने सुना पर हम मानने वाले नहीं. We are not going to follow तौरात. अल्लाहु अकबर. आपको पता है इसके ऑपोजिट सहाबा इकराम ने क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? समिअना व याद है किसी व को? अताना. यस, वेरी गुड. समिअना व अताअना, यानी वी लिसन एंड वी ओबे. हमने सुना और हम इताअत करेंगे. और ये कहाँ पढ़ते हम लोग? रोज पढ़ते. ये समिअना व अताअना कहाँ पढ़ते? कोई बताएगा मुझे? रोज कोई पढ़ता है इसको रोज? बाजी सूरे बकरा की लास्ट 2 आयत में है. वेरी गुड निशात. इसको पढ़ते हो रोज निशात? जी बाजी. वेरी जी. गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. कितने लोग पढ़ते हैं रोज सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत सिर्फ आमन रसूल से? पढ़ते हैं ना? फिर जब मैंने पूछा कि समिअना व अताअना कहाँ पढ़ते हैं रोज, तभी हाथ ऊपर क्यों नहीं आए सबके?
یاد نہیں آیا کہ ہم لوگ روز پڑھتے ہیں؟ چلو کوئی نہیں، ابھی یاد آ گیا، الحمدللہ. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، اتنی غفلت میں پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم لوگ روز اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں اور ہم مانیں گے. اور ان لوگوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، وہ جو گائے کا بچڑا انہوں نے بنا لیا تھا سونے کا اور پھر اس کو پوجنے لگے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، پھر اس بچڑے، سونے کے بچڑے کو توڑ پھوڑ دیا، اس کو جلا کر اس کی راکھ اڑا دی تھی پانی میں. کہا جاتا ہے کہ وہی پانی ان لوگوں نے پیا تھا. اسی لیے یہاں پر آیا کہ اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسی بھری ہوئی تھی کہ وہ جو شرک تھا نا، اتنا بڑا شرک، تو شرک ان کو توحید کی طرف آنے ہی نہیں دیتا تھا. یہی ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں بھی شرک داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر نافرمانی کے کام ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھئے یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ یہ تمہارا ایمان تم کو یہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دو کہ ہم نہیں مانیں گے؟ یہ تمہارا ایمان تم سے نافرمانی کرواتا ہے. کتنا برا ہے پھر یہ تمہارا ایمان. استغفر اللہ. اللہ اکبر. دیٹ مینس یہ ایمان کیا تھا ان کے اندر؟ شرک بھرا ہوا تھا. اور جس دل میں شرک ہوتا ہے اس دل میں ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ دیٹ از اے کویسچن. ہم سب کو اس پہ انٹروسپیکٹ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ جس دل میں شرک ہو اس دل میں ایمان، توحید کیسے آ سکتا ہے؟ بیکاز یہ دونوں اپوزٹ ہے نا. شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان. نہیں، شرک کا اپوزٹ ابھی تو بتائی میں نے. توحید باجی. توحید. ویری توحید. گڈ. اور توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. لا ہاں، الہ الا اللہ. ویری گڈ. صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ پر ایمان، یہ توحید ہے. اور شرک کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ، کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پوجتے ہیں، دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں. اس لیے شرک ورڈ آ گیا. گاٹ اٹ؟ اس کو انگلش میں مونوتھیزم اینڈ پولیتھیزم ورڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 94. ہاں جی انجم آپا آپ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، وہی جو آپ پوچھے تھے نا، توحید اور توحید کیا ہے، تو اللہ کو ایک ماننا، وہ اس وقت ہاتھ اٹھائی تھی میں، ابھی نہیں. اوکے ٹھیک ہے. الحمدللہ. 94. قل، ابھی اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر، کانت ہے، اگر ہے، لکم لیے تمہارے، الدار الاخرت. دیکھیے الدار کہتے ہیں گھر کو، الدار گھر. کون سا گھر؟ آخرتو. آخرتو میں سمجھ میں آتا ہے نا کہ آخرت کا گھر. عند اللہ، عند کا مطلب پاس، اللہ کے پاس. عند اللہ، اللہ کے پاس. خالصتاً، خالص، پیور. من دون الناسی، سوائے انسانوں کے، سوائے دوسرے انسانوں کے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ کے پاس خالص ہے، پیور ہے، سیف اللہ نے رکھی ہے، گارنٹیڈ.
मिन दुनिन्नासी, और दूसरे इंसानों के लिए नहीं रखी है, सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर क्या, फतमन्नउल मौता, फ यानी फिर, तमन्नऊ में तमन्ना वर्ड है ना निशात? तमन्नऊ में तमन्ना वर्ड नजर आ रहा है? जी बाजी। हाँ, तमन्ना का मतलब क्या होता है? विश। फिर तुम तमन्ना करो, विश करो, किस चीज की? अल मौता, मौत की, डेथ। अगर तुम समझते हो तुम्हारे लिए जन्नत अल्लाह के पास गारंटीड है, तो फिर तुम मरने की तमन्ना क्यों नहीं करते? जल्दी से तुमको जन्नत मिल जाएगी। इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। So say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you think, if you feel that that the house in the akhirah, the home in the hereafter, that is Jannah with Allah, is exclusively guaranteed for you, excluding other human beings, बाकी इंसानों को छोड़कर, फतमन्नउल मौता, then why don't you wish? Why don't you wish to die? Then go die. In kuntum स्वादिकीन, if you are truthful. समझ में आ रहा है? अब इसके पीछे एक वाकया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये यहूदी आए थे। हाँ, हम पढ़ चुके हैं ना कि मदीना में, मदीना के सराउंडिंग में आकर यहूदी बस गए थे। दे केम एंड दे स्टेड देयर, क्योंकि वो वेट कर रहे थे आखिरी नबी इसी इलाके में आकर रहने वाले हैं। ये उनको उनके उलेमा ने बता दिया था कि तौरात में ये लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एतराफ में आएंगे, तो ये लोग वहां आकर रहने लगे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, वहां पर नबूवत मिल गई, हिजरत करके मदीना आ गए, तो फिर ये लोग, इन लोगों ने क्यों इनकार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? क्योंकि ये बनी इस्माइल से थे और उनको चाहता था कि बनी इस्राइल से आए। वेरी गुड। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए यहूदी, और बाजी, we lost your voice. Yeah, just a moment. I'm reading from here कि यहूदी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम सच्चे हो तो मुकाबले में आओ। कहाँ बुलाया उनको? कंपटीशन, ओपन चैलेंज दिया। तुम और हम मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो हम में से झूठे को हलाक कर दे। हाँ, क्या फरमाया कि तुम और हम ओपन मैदान में आते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हम में से जो झूठा होगा ना, उसको तो हलाक कर दे, अभी के अभी खत्म कर दे सबके सामने। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया था पहले ही कि ये लोग हरगिज इस चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है और कुरान सच्ची किताब है। तो उनको पता है कि यही खुद यहूदी खुद झूठे हैं, इसीलिए वो इस चैलेंज को कबूल करेंगे ही नहीं और आएंगे भी नहीं, क्योंकि नुकसान तो उन्हीं का होगा। दे विल बी द लूजर्स। और अगर वो आते तो सारे के सारे यहूदी उस दिन हलाक हो जाते, पूरी जमीन पर एक भी यहूदी बाकी न रहता। गॉट इट? तो वो लोग उस चैलेंज में आए ही नहीं। अल्लाहु अकबर। तो लेकिन ये लोग ये चैलेंज किया करते थे कि हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत स्पेशली गारंटीड एक्सक्लूसिव रखी है। Why? Because we are Allah's favorites
एंड अल्लाह ताला सिर्फ हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई, ये कहते थे यहूदी। गॉट इट? तो फिर उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरे फिर तुम अगर किसी को ये गारंटी मिल जाए तो वो तो सोचे कि चलो कब मैं मरूं तो मुझे जन्नत मिल जाए, तो फिर तुम लोग क्यों नहीं मौत की तमन्ना करते? बट अभी आगे हम देखेंगे कि ये लोग क्या मौत की तमन्ना करने को रेडी थे या इनकी सोच और कुछ थी। उससे पहले लेट अस इंट्रोस्पेक्ट। आज हम मुसलमानों का कॉल कुछ ऐसा नहीं होता। डोंट वी मोमेन मेक सच स्टेटमेंट्स कि जन्नत तो सिर्फ हम मुसलमानों के लिए है, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स हम लोग करते हैं या नहीं करते? सुनने को मिलता है? जी बाजी, we always in the superiority complex that since we are born Muslims so we'll go to heaven and rest people are not. हाँ, और हम लोग कहते भी है, मस्त आराम से कहते हैं सबको कि हम लोग तो जन्नत में जाएंगे और तुम नहीं जाएंगे। ऐसा अल्लाह ताला ने कहाँ लिख कर दिया है हमको? कोई गारंटी दी है? ऐसी गारंटी उनको भी नहीं मिली थी। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। 95 वलन और हरगिज नहीं, या तमन्नऊ, वो और लन जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये, नेवर, हरगिज नहीं, या तमन्नऊ, हरगिज नहीं तमन्ना करेंगे उसकी, किसकी? मौत की। हु किसके लिए आया यहाँ पर? मौत के लिए। अबदन, कभी भी, नेवर एवर, बिमा कद्दमत, क्यों कभी नहीं मौत की तमन्ना करेंगे? बिमा, क्योंकि, बिकॉज, हम लोग ये रीजंस पढ़ते थे ना स्कूल में, तो ये अल्लाह ताला हमको क्वेश्चन भी करते हैं और आंसर भी देते खुद ही। फरमा दिया बिमा, क्योंकि, बिकॉज, कद्दमत, जो कुछ आगे भेजा। देखिए इसमें कदम वर्ड नजर आ रहा है निशात? कदम, जी बाजी, खाब दाल माँ। कदम से हम लोग किस तरफ बढ़ते, आगे या पीछे? आगे जाते आगे। बाजी। हाँ, तो कदम वर्ड आया है आगे भेजने के लिए। दैट मीन्स योर डीड्स, अमल। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि जो कुछ कदम यानी जो कुछ आगे भेजा, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, पैर भी आगे और हाथ भी आगे। ऐदी कहते हैंड्स, हिम उनके, तो जो कुछ आगे करके भेजा उनके हाथों ने। हाथ क्या करके भेजते हैं? अमल, डीड्स। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, खूब जानने वाला है, बिज़ालिमीन, जालिमों को। अल्लाह इज द ऑल नोवर। ये जो अलीम वल्लाहु आया ना, इसको सर्कल करेंगे जरा। वल्लाहु ये क्या है? अल्लाह किसका नाम है? किसका नाम है ये? अल्लाह का। अल्लाह का। इट इज द पर्सनल नेम ऑफ अल्लाह। गॉट इट? और उसके आगे जो है अलीमुम, इसको भी सर्कल करेंगे। और ये अलीमुम क्या है? ये अलीम भी अल्लाह का नाम है। इल्म वाला है। हाँ, खूब इल्म वाला है, सारे इल्म वाला है, सुपरलेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऑल नोवर, बिज़ालिमीन, किसको? अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया था कि these people will never accept the challenge because of their deeds that they have sent forward. जो अमल उन्होंने आगे करके भेजे वो कोई अच्छे अमल है ही नहीं, तो उनको पता है कि हमारे अमल हमको कहाँ ले नहीं जाएंगे? जन्नत में। हमारे अमल हमको जन्नत में ले जा ही नहीं सकते, इसलिए वो हरगिज कभी भी मौत की तमन्ना करेंगे ही नहीं। ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं?
बनी इसराइल। लेकिन चांद आंटी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो हम अपने ही बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ना, हम में से कौन कभी मौत की तमन्ना करता है? हम लोग तो सोचते हैं कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर उसके बाद उनकी शादी होगी, फिर मेरे पोते नवासे होंगे, आई विल हैव ग्रैंडसन्स, ग्रैंडचिल्ड्रन, फिर अभी उनको खिलाना है, फिर उनको स्कूल जाते देखना है, फिर उनकी शादी होगी, फिर घर में इतने सारे बच्चे होंगे, इतना बड़ा मेरा परिवार होगा, आई विल हैव सच अ ह्यूज फैमिली। ऐसी बड़ी बड़ी तमन्नाएं करते हैं नहीं करते? कुरान में आने के बाद ये सब छोड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। बट दैट डजंट मीन कि हमको मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। बट यस, एक मोमिन जो है वो मौत से डरता भी नहीं और भागता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मौत तो बरहक है, इट इज द इटर्नल ट्रुथ। और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसे मौत ना आई हो या ना आएगी। हर एक को मौत का मजा तो चखना ही है। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर एक को मौत आनी है। तो फिर ना हमें मौत की दुआ करनी है, ना मौत की तमन्ना करनी है, और ना मौत से डरना भी है। तो फिर क्या करना है? बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को याद किया करो कसरत से, मौत को कसरत से याद किया करो। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि ये लज्जतों को काटने वाली चीज है मौत, लज्जतों को काटने वाली चीज है मौत, जो हमारे डिजायर्स और हमारे शौक उनको कट कर देती है। तो मौत को याद करना है पॉजिटिव वे में। और क्या करना है? हमको मौत से पहले तैयारी करनी है। मौत से पहले तैयारी करनी है। कैसे करेंगे मौत की तैयारी? ये जो अभी यहाँ पर आया ना कि उनके आमाल ऐसे नहीं कि वो मौत की तमन्ना करें, तो फिर हमको यहाँ से ही मॉरल उठाना है कि हम अपने आमाल, यस वेरी गुड, हम अपने आमाल नेक करें, करेक्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह को राजी करने वाले काम करने लगे तो फिर मौत से कोई डर नहीं इंशाल्लाह। और क्या कर लेना है? तौबा करनी है ना। तो मौत को याद करना है, मौत की तैयारी करनी है यानी नेक अमाल करना है, और नेक्स्ट तौबा करनी है। कब करनी है? अभी करनी है, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट पल क्या हो जाए। तो अभी हम कह देंगे अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह। ठीक है, तो अल्लाह ऐसे जालिमों को खूब जानता है। अस्तगफिरुल्लाह। चले 96, आयत 96, वो और लत जिदन्नहुम, वो और ल बेशक, अलबत्ता, तजिदन्नहुम, तुम जरूर पाओगे उनको। तजिद होता है तुम पाओगे, और जरूर कहाँ से मिला? ये जो नून के ऊपर तशदीद है ना निशात, उसको सर्कल करेंगे। सिर्फ नून के ऊपर तशदीद है। Can you see the tashdid upon the noon? Not here. وَلَتَجِدَنَّهُمْ. हाँ, yes, very good. एरो किया है उसने। नून के ऊपर तशदीद है, तो ये नून के ऊपर जब तशदीद आ जाती है ना तो जरूर बजरूर हो जाता है। Got it? Surely, surely लिख लीजिए वहां पर, surely। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि surely you will find them, तुम जरूर पाओगे उनको। अहरस, अहरसन नासी, सबसे ज्यादा हरीस, ग्रीडी इंसानों में।
किसको पाओगे? बनी इसराइल, यहूद और नसारा को तुम सबसे ज्यादा ग्रीडी पाओगे। हरीस वर्ड है इसमें, हिर्स वर्ड पता है ना, हिर्स, ग्रीडी, लालची, लालची कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा लालची है ये, ग्रीडी है तमाम इंसानों में। किस चीज के बारे में लालची और ग्रीडी है? अला हयाती, जिंदगी के बारे में, अबाउट देयर लाइफ, कि उनको जिंदगी कितनी चाहिए, बहुत लंबी, मौत नहीं चाहिए, जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी हो, इस चीज का उनको क्या था? हिर्स यानी ग्रीड। वमिनल लजीना अशरकू, और उनसे जिन्होंने शिर्क किया, उन्होंने यानी तमाम इंसानों में ये यहूद और नसारा जिंदगी के बारे में ग्रीडी है, लालची है। दे वांट अ लॉन्ग 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 लाइफ। और मुशरिकों से भी ज्यादा, यानी मुशरिक भी इनके पीछे रह गए और ये आगे निकल गए जिंदगी की लालच में। यवद्दू, चाहता है, यवद्दू चाहता है, लव्स, अहदुहुम, ईच वन ऑफ देम, हर एक उनमें से। आहद कहते हैं ना एक को, निशात आहद किसको कहते? एक, एक, हाँ जी बाजी। हाँ, तो अहदुहुम, हर एक उनमें से, हाँ, हर एक उनमें से चाहता है। ईच वन ऑफ देम, लव्स, विशेस, क्या चाहता है? अभी देखिए, लव, लव कहते हैं काश, इफ, हम लोग कहते हैं ना ए काश कि ऐसा हो, तो लव, लव को सर्कल कीजिए, लाम वाव जबर, लव, काश, आई विश, कितने लोग कहते हैं आई विश, यू अमरुल अलफ, हर एक चाहता है कि ए काश वो उमर दिया जाए। यू अमरू में उमर वर्ड नजर आया, आइन जी बाजी। मीम रा, है ना उमर। हाँ, तो ऐसा अगर हर एक वर्ड को हम लोग ऐसे गौर से देखेंगे ना, थोड़ा सा, रजिया बाजी बोलते हैं कि ऐसे घूर घूर के देखो वर्ड्स को, ऐसा गौर से देखेंगे ना तो उसमें उमर वर्ड नजर आएगा आपको। तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि हर एक उनमें से चाहता है कि काश कि वो उम्र दिया जाए। ही वुड बी ग्रांटेड अ लाइफ, कितनी? अल्फ सनतिन, अल्फ कहते हैं 1000, सनतिन ईयर्स, 1000 साल की उम्र, अल्फ कहते हैं 1000, सनतिन साल, ईयर्स। So each one of them wishes to get 1000 years age. अल्लाहु अकबर, मुझे तो ये सोच के डर लगता है, 1000 साल जी के क्या करूंगी मैं। अल्लाहु अकबर। वह माँ, और हालांकि नहीं, माँ यहाँ पर नहीं के फॉर्म में, बट नॉट, हुआ वो, बिमुज़हज़िही, ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, कि और नहीं इतनी उम्र, 1000 साल की उम्र, बिमुज़हज़िही, हटा सकती, दूर कर सकती, नहीं इतनी उम्र दूर कर सकती, मिनल अजाबी, अजाब से। यानी 1000 साल की उम्र अगर मिल भी गई तो क्या वो अजाब को दूर कर सकती है? आई अमर, अगर वो उम्र दिया जाए, अगर 1000 साल की उम्र मिल भी गई तो क्या वो एज, वो लाइफ तुमको अजाब से बचा सकती है, दूर कर सकती है अजाब तुमसे? नो। वल्लाहु, और अल्लाह, फिर से अल्लाह को सर्कल करेंगे, वल्लाहु, और अल्लाह। आप बोलेंगे कि अल्लाह को क्यों सर्कल कर रहे? क्यों ना करे, मेरे अल्लाह का नाम है, मेरे रब का नाम है ना, सबसे ज्यादा प्यारा नाम,
اللہ. اور جب بھی اللہ آیا اس کے بعد کیا آیا دیکھیے, بصیرم, یہ بھی اللہ کا نام ہے, خوبصورت نام بصیر. اس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھنے والا, all seeing. بصارت کہتے اردو میں آنکھوں کو, تو بصیر سب کچھ دیکھنے والا, all seeing. تو اللہ کیسا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بیما, ساتھ جو, یا عملون, وہ عمل کرتے. دیکھیں یا عملون میں عمل ورڈ نظر آیا نشاد, عین جی میم باجی. لام. ویری گڈ, انڈر لائن کیا ہے, عین میم لام. تو آپ کے پارے میں اگر آپ ایسے سرکل کرو, انڈر لائن کرو, لکھو, کوئی پرابلم نہیں. آپ اپنے پارے میں لکھ سکتے ہو, آپ کا پارا ہے, اس کو بالکل کلین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میک نوٹس, انڈر لائن, سرکل, اور جو روٹ ورڈز ملتے ہیں عین میم لام, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لو. ٹھیک ہے, ہاں. یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ بے شک اگر ان کو, نہیں کیا تھا, وَلَتَجِدَنَّهُمْ, آیت 96, اگر تم ضرور اور ضرور تم پاؤ گے ان کو گریڈی. They are very greedy about life. They want a long, long life. And they are greedier than every other human being. They are greedier than the mushrik too. سب سے زیادہ گریڈی ہے یہود اور نصارہ لائف کے بارے میں, اور ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے, ایوری ون wishes they should be given at least 1,000 years life. Now Allah Ta'ala asks a question. What do you think? 1,000 سال کی زندگی کے بعد بھی کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ کیا تمہاری 1,000 سال کی زندگی تمہیں عذاب سے بچا لے گی, عذاب سے دور کر سکتی ہے؟ نو. تو اللہ تو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اللہ is watching each and every deed of yours. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو ڈونٹ میک دا مسٹیک کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے. نو, قرآن میں پڑھ رہی ہوں اور قرآن کا ہر ورڈ میرے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں. What impact does it make upon you, Chand aunty? Okay, we should be very careful of everything that we do, we speak, we see, because each time Allah is constantly watching us, اور ان کے فرشتے کرامن کاتمین ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں. جی. Baji, it scares us that everything is being written down, and sometimes we are not accountable for our actions. So we have to really, worry. Yes, correct. اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, بٹ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. That super power Allah is. الحمدللہ. تو اب آپ سوچیں کہ کہیں ہم باہر جاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. So how mannerful we are, isn't it? ہم بالکل اچھے سے بیٹھتے ہیں, اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھتے ہیں. You are so well groomed and well mannered and you talk so politely. Why? Because people are watching you. آپ لوگوں کے بیچ میں ہو, اور کبھی آپ سٹیج پہ کھڑے ہو گئے, سمجھو آپ کوئی اسپیچ کرنی, تب تو آپ اگر فوکس میں ہو, لائم لائٹ میں ہو, تب تو آپ اور کانشیس اور الرٹ ہو جاتے ہو. لیکن جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں, تب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تب ہماری صحیح پہچان ہوتی ہے کہ میں کیسی ہوں, اور تب یہ نہ بھولے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے گھر میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ, ہمارے سرونٹس کے ساتھ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں,
then that also Allah is watching, isn't it? Allahu Akbar. चलिए एक हदीस लिखते हैं, आज हमने एक भी हदीस नहीं लिखी अभी तक. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है, तुम में से बेहतर वो है जिसकी लंबी उम्र हो, जिसकी लंबी उम्र हो और आमाल अच्छे हो, और आमाल अच्छे हो. इसको रिपीट करेंगे चांदन जी? जी हाँ, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जिसकी लंबी उम्र हो और आमाल अच्छे हो. हाँ, और इस आयत में जो आया कि ये यहूद और नसारा जो है वो मुशरिकों से भी बढ़कर ग्रीडी है लाइफ के बारे में. तो जो मुशरिक होते हैं ना, मुशरिक क्यों लाइफ के बारे में इतने ग्रीडी होते हैं? बिकॉज उनको तो आखिरत पर यकीन ही नहीं होता ना. उनके लिए तो ये दुनिया ही जन्नत है और ये दुनिया ही उनके लिए एंजॉयमेंट है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी लंबी उम्र. लेकिन एक मोमिन के लिए क्या है? एक मोमिन का पूरा यकीन है कि ये दुनिया की जिंदगी तो बस एक ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन है, और बाकी फुल ओशन इज द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर, वो आखिरत की जिंदगी है. तो हम लोग आखिरत की जिंदगी पर ज्यादा फोकस्ड है. अभी ये यहूद और नसारा के बारे में ऐसा क्यों आया कि वो लोग क्यों, फिर उनको क्या आखिरत पर यकीन नहीं है? है, इसीलिए तो वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनके अमाल इतने बुरे हैं कि उनको पता है कि ये अमाल लेकर हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए वो दुनिया में ज्यादा जीना चाहते हैं. समझ गए? ओके. अभी मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचकर जवाब देना है. इट इज ओपन फॉर ऑल. कि सबसे लंबी उम्र किसकी है? सबसे लंबी उम्र किसने पाई है? शाहीन का हाथ ऊपर है, इसके अलावा जैनब, अफसर, माशाल्लाह सबको मालूम है, आप सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हो माशाल्लाह. अच्छा, मैं अफसर जहां से पूछती हूँ, बताइए. अफसर जहां बोलिए. जैनब? Iblis. वेरी गुड, वेरी गुड. और मुझे लगता है आप सबका जवाब यही होगा, इब्लिस इज द राइट आंसर. कि अल्लाह ताला ने इतनी लंबी उम्र और किसी को भी नहीं दी सिवाय इब्लिस के. उसने चैलेंज लिया था ना अल्लाह ताला से, तो इब्लिस के बराबर की उम्र भी अगर कोई पा ले तो क्या इब्लिस अजाब से बचने वाला है? नेवर. इब्लिस तो इब्लिस तो जहन्नम की आग में जलेगा. तो फिर इतनी लंबी उम्र अगर इब्लिस को नहीं बचा सकती अजाब से, तो किसी को भी नहीं बचाने वाली. मौत तो बरहक है. अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह. चले आगे बढ़ते हैं. आयत नंबर नहीं, यहाँ पर हमारा रुकू कंप्लीट हुआ, बट बढ़ते आगे एक और आयत हो जाएगी 97. कुल, आप फरमा दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कौन, मन कौन, कान है, अदुवन दुश्मन, अदुवन दुश्मन. लिख लीजिए आप. सूरह यासीन कौन कौन पढ़ता है रोज या कभी भी? उसमें कितने मुबीन आते हैं? मुबीन 7 7 बार. हाँ, और मुबीन से पहले क्या वर्ड आता है? सलमा? हाँ, पढ़ रहे 1 मिनट अंजुम बाजी. नहीं, क्या वर्ड आता है मुबीन से पहले? जरा आज सब लोग थोड़ा गौर करेंगे. हाँ, होमवर्क होगा ही. हम लोग इतना बस क्या कहते हैं उसको,
We are only reciters. Rote learning. rote learning, only reciters, है ना. अभी जरा ये वाला वर्ड ढूंढना. आज सूरह यासीन में कितने बार ये वर्ड मिलता है? Badi अदुव्वुन. imamin mubin. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी ये अदुव्वन को सर्कल करें. और आज ये नया वर्ड हमने सीखा है, इसका मतलब है दुश्मन. ठीक है, तो कुल आप फरमा दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है दुश्मन ली जिब्रील. ली मैंने आपको सिखाया है. ली का मतलब है लिए. कितना अच्छा. ली का मतलब लिए, शॉर्ट फॉर्म है. जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए कौन दुश्मन है? जिब्रील का. फ़इन्नहु, फिर बेशक वो, नज़्ज़लहु, वो नाजिल फरमाता है. किसको उसने नाजिल फरमाया? कुरान. अला कल्बिक, ऊपर आपके कल्ब के. कल्ब कहते हैं दिल. और यहाँ पे जो काफ है ना निशात, अभी इसको सर्कल करेंगे. कल्बिक में काफ है, देखिए. कल्बिक, डंडी वाला काफ. ये किसके लिए है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है. ये वाला नहीं निशात, लास्ट वाला. कल्बिक, हाँ, जिसको अंडरलाइन किया है. वेरी गुड. तो ये काफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वो है जो नाजिल फरमाते हैं कुरान को ऊपर आपके दिल के. यहाँ पर क कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर, आपके दिल पर, अपॉन योर हार्ट. कैसे कैसे नाजिल फरमाया? बिइज़्निल्लाही, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की परमिशन के साथ. इज़्न कहते हैं परमिशन, इजाजत. ओके, तो अल्लाह की परमिशन के साथ. मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला, कंफर्म करने वाला. लिमा, उसके जो, बैन यदैही, दोनों हाथों के सामने, यानी प्रेजेंट एट दैट टाइम, बिफोर, प्रेजेंट बिफोर देम. वह हुदाउ, और हिदायत. क्या है कुरान में? हिदायत. व बुशरा, और बशारत, खुशखबरी. लिल मुमिनीन, लिए मोमिनों के. क्या है कुरान में? कुरान कंफर्म करने वाली किताब है. मुसद्दिक़न लिमा, it confirms every book that was present before them, that is Torah and Injil. And what is there in Quran? Hudan, hidayat, guidance. Hudan, hidayat, guidance. Bushra, glad tidings, खुशखबरी. लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए. अब क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से पूछिए कि कौन है दुश्मन? जिब्रील अलैहिस्सलाम. अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? हम सब जानते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार है. ही इज द चीफ ऑफ द एंजल्स. अल्लाह के जो तमाम फरिश्ते हैं. और कितने फरिश्ते हैं पता है आपको? अल्लाहु अकबर. हम, there is no count, there is no count. जितने इसमें आता है ना सूरह कदर में, जो हम शब कद्र की रात में पढ़ते हैं, कि जमीन में जितने कंकर है ना, जितने कंकर, जितने मिट्टी, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स है ना, उन पार्टिकल से कई ज्यादा हर चप्पे चप्पे पर उस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं. बट सारे फरिश्ते थोड़ी आते हैं उस रात में. तो उस रात में इतने फरिश्ते आते हैं कि पूरी जमीन और आसमान के बीच फरिश्ते भर जाते हैं. एंड तभी भी वो, दे आर नॉट ऑल, दे आर स्टिल लिमिटेड, दे आर अ पार्ट ऑफ द टोटल नंबर. तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कि अल्लाह के कितने फरिश्ते.
اور ان سب فرشتوں کا چیف، ان سب فرشتوں کے سردار ہے جبریل علیہ السلام، اور ان کو جبریل امین بھی کہا گیا، روح القدوس بھی کہا گیا، کیونکہ فرشتے جو ہے نا وہ نور سے بنے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، almost 600 ونگز۔ ان کی سائز کے بارے میں ہم امیجن نہیں کر سکتے، ان کے لکس کے بارے میں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ ان کی ایکچوئل شکل میں دیکھا، لیکن اس کے علاوہ وہ ہمیشہ اپنی پرسنالٹی میں نہیں آتے تھے، اور اللہ کے حکم سے تمام انبیاء پر، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، جتنے نبی آئے ان سب نبیوں پر وہی نازل کرنے کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی جبریل علیہ السلام کی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام اسی لیے امین کہے گئے۔ امین کا مطلب امانت دار، دا موسٹ ٹرسٹ وردی، کہ اتنی بڑی ذمہ داری قرآن نازل کرنے کی ان کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ایسے جبریل امین سے دشمنی کرے؟ اور آپ اور میں کہیں گے کہ بھائی ہم لوگ نہیں کرتے، تو پھر یہ کون ہے دشمنی کرنے والا؟ تو اس کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ جو یہود تھے، یہ لوگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ کویشچنز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سوالوں کے جواب ہم کو ٹھیک ٹھیک دے دیں گے، صحیح جواب دے دیں گے، تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے، ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہتے ہو وہ کرو، میں جواب دوں گا، لیکن ایک شرط پر، کہ اگر میں نے سوال کے جواب صحیح دے دیے، if I answer all your questions rightly, correctly، تو تم کو میری نبوت کا اقرار کرنا ہوگا اور میری فرما برداری بھی کرنی ہوگی، میری ہر بات ماننی ہوگی۔ تو انہوں نے پرامس کیا، اور پھر وہ کویشچنز پوچھنا انہوں نے شروع کیا، اور آخری کویشچن ان کا یہ تھا۔ وہ جو بیچ کے سارے کویشچنز تھے وہ سارے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی، لیکن جو لاسٹ کویشچن ان کا تھا وہ یہی تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ پر قرآن یعنی وحی کون سا فرشتہ نازل کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے سارے کویشچنز کے آنسر صحیح دے دیے۔ پھر جب اس کویشچن پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا ولی جبریل امین ہے، وہی میرے پاس اللہ کی وحی لاتا ہے، اور تمام انبیاء اکرام کے پاس وہی اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا جواب تو صحیح ہے، آپ کا جواب تو صحیح ہے، لیکن جبرائیل فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی عذاب بھی نازل کرتا ہے، کبھی مصیبتیں بھی نازل کرتا ہے، اسی لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے۔ دیکھیے، نہ ماننے کا آخری بہانہ ان کو مل گیا، نہ ہم قرآن کو مانیں گے اور نہ آپ کو نبی مانیں گے۔ تو یہ انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم جبریل امین کو اپنا دشمن مانتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو دوسرے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، اگر میکائیل علیہ السلام آپ پر وحی نازل کرتے، کیونکہ وہ تو رحمت کے فرشتے ہیں، وہ بارش وغیرہ اللہ کے حکم سے نازل فرماتے ہیں، اگر وہ آپ پر وحی نازل کرتے
تو وہ تو ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی بات مانتے اور قرآن کو بھی مان لیتے. اس طرح پھر سے انہوں نے بہانہ بنایا اور وہاں سے نکل گئے. اللہ اکبر. اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نیکسٹ آیت میں دیں گے، جو انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کو پڑھیں گے، کہ انہوں نے اللہ کے فرشتے جبریل امین کو اپنا دشمن کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان سے اب کیا جواب دیں گے، that we will find out in our next class on Monday inshallah. ربنا تقبل منا صدق اللہ العظیم.